ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਥਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸੰਧੂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 75% ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ 15,000, 33 ਤੋਂ 75% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ 6750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 95,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 26 ਤੋਂ 31%, 33% ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, 33 ਤੋਂ 75 ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, 75 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਦਿਨ 75 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 54 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 25% ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਤਾ, ਵਾਧਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 75 ਤੋਂ 100% ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਆਊਗੀ। 75 ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਆਊਗੀ। 75 ਤੋਂ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ ਵੀ ਮਸਾਂ ਬਣੂਗੀ, ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ, ਪਹਿਲਾਂ 12,000 ਸੀ ਏਕੜ, ਪਹਿਲਾਂ 12,000 ਸੀ, 25% ਅਸੀਂ ਵਧਾਤਾ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ। ਗੁਰਦਾਵਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਲਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋ। ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਲਮਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ। ਤੇ 2-3 ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੌਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦੌਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦੌਰੀ ਕਰਨ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖ ਦੂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਫਸਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੌਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਗੁਰਦੌਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਨੇ % ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि नशे में इंसान जो है वो बुद्धिहीन हो जाता है। जब वो नशा करता है वो बुद्धिहीन हो जाता है। नशे का ओवरडोज जब उसको हो जाता है वो बुद्धिहीन हो जाता है। परंतु पहली बार देखने को मिल रहा है कि सत्ता के ओवरडोज नशे में इंसान बुद्धिहीन तो हो ही गया, उसके साथ साथ कायर और डरपोक भी हो चुका है। ये वर्तमान में भाजपा की जो सरकार है, जिस सरकार को मोदी और अडानी शाह चला रहे हैं, ये सरकार सत्ता के नशे में ओवरडोज हो चुके हैं। और ये सत्ता के नशे में होकर इन्होंने राहुल जी का जो निष्कासित करने का काम किया है। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अडानी और शाह की अदालत में तो राहुल जी को दोषी करार कर सकते हैं, परंतु इस जनता की अदालत में, इस गरीब जनता की अदालत में, बेरोजगार युवाओं की अदालत में, जो हमारे छात्र इस शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी अदालत में, हमारे इस देश में दलित और पिछड़ों की अदालत में जो है, उन सबको पता कि उस जनता में जो है राहुल जी की जो सत्ता तक की आवाज है, उनको कोई दबा नहीं सकता। आज जो राहुल जी के साथ हुआ है वो राहुल जी के नहीं, हमारे लोकतंत्र, हमारे विश्वास के खिलाफ जो हुआ है, जो देश का विश्वास है राहुल जी में, उसके खिलाफ जो फैसला हुआ है, उसके लिए आज कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा हो गया है। और मुझे आशा है कि आपके सबके दम पे एक दिन शक्तियां, ये जो शक्तियां फांसीवादी ताकतें राज में बैठ गई हैं, ये वापस उतर के अपने घर जाएंगे और देश को सुशासन मिलेगा। मुझे राहुल जी की एक बात याद आ रही है। एक किताब के इनॉग्रेशन में राहुल जी ने कहा था कि के राजू जी के किताब के इनॉग्रेशन में कहा था कि मेरा जन्म सत्ता के बीच में हुआ, पर मुझे सत्ता का मोह नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं देश में जो सत्ता से बाहर पैदा हुए पर सत्ता में आने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। वो बात
आज भी सत्य साबित हुई है। राहुल जी ने जब जब जो बातें कही वो बाद में जाके सत्य साबित हुई, ये पूरे देश की जनता जानती है। परंतु इन्होंने हजारों करोड़ रुपए जो राहुल जी की छवि खराब करने के लिए लगाए थे, उसका असर ये हुआ कि अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है कि जो हथकंडे अपनाए थे, जो ताकतें पीछे पड़ी थी, वो सही नहीं है। राहुल गांधी जी सत्य है और राहुल गांधी जी सत्य के साथ है। कल परसों जो हुआ है उसका असर पूरे देश में हो रहा है। सर फर्क इतना है कि हमको जगाना है लोगों को, और जो एक बार जो लहर चल जाएगी लोगों की, वो सत्य और असत्य में निश्चित तौर पे फर्क महसूस करेंगे। मैं यहां कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहता हुआ, एक बार आप सब पधारे हो, आप और हम सब एक मंच पे खड़े होके जहां जहां गली गली, गांव गांव, जहां ग्रामीण क्षेत्र में सबको इस बात का एहसास कराना है कि राहुल जी ने क्या कहा और क्या यह न्याय काबिल है या अन्याय करने के काबिल है। ये बात हम जब अगर कहेंगे तो जब इंदिरा गांधी जी को जेल में डाला था, तब जब पूरे देश की जनता साथ लग गई थी, तब अपने आप ही सत्ता पलट गई थी। तो यहां भी इस बात की आवश्यकता है कि जो झूठे बैठ गए हैं, जो 8-9 साल से हम झेल रहे हैं, ये लूट रहे हैं। और रेल के आगे भी अडानी रेल लग गया, एयरपोर्ट के आगे भी अडानी एयरपोर्ट लग गए, पता नहीं क्या क्या जितने उपक्रम थे भारत सरकार के, वो सारे रोजगार देने वाले उपक्रम प्राइवेट हाथों में देके इस देश को कंगाल बनाने के लिए तैयार हो गए। तो आओ हम सब एक होके राहुल गांधी जी के साथ लगे और राहुल गांधी जी के साथ रह के इस देश को न्याय दिलाएं। बहुत बहुत आभार। बहुत ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ। मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है डिवीजन, कांग्रेस का मतलब है भाई भतीजावाद, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है मिशन, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है समाज सेवा, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है महिला सशक्तिकरण, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है समाज का सशक्तिकरण, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति। जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी। इस संस्कृति को हम लेकर के चलते हैं। यहां कोई भी नेता आकर के खड़ा होता है तो वो एक से एक योजनाओं के बारे में चर्चा करता है, लेकिन अगर आप कांग्रेस के नेता की कभी आप भाषण सुनिए, भाई को भाई से कैसे लड़ाया जाए, जाति को जाति से कैसे लड़ाया जाए, धर्म को धर्म से कैसे लड़ाया जाए, गांव को गांव से कैसे लड़ाया जाए, इलाके को इलाके से कैसे लड़ाया जाए, वोट को डिवाइड करके वोट बैंक की राजनीति कैसे की जाए, ये कांग्रेस की संस्कृति बताती है। मैं किसी नेता का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जिस प्रकार से आज चर्चाएं हो रही हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। अहंकार बड़ा है, समझदारी छोटी है, समझदारी बहुत छोटी है। अभी आज पता चला मुझे कि सारे देश में कांग्रेस पार्टी वाले सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह, अरे सत्याग्रह तो 1906 में महात्मा गांधी ने किया था साउथ अफ्रीका में। सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने 1919 में किया था भारत में। किसके लिए किया था? भारत के सम्मान के लिए किया था। किसके लिए किया था? भारत की अस्मिता के लिए किया था। किसके लिए किया था? भारत में भारतीय का राज हो, इस बात को बढ़ाने के लिए किया था। आप सत्याग्रह कर रहे हो, किस बात के लिए सत्याग्रह कर रहे हो? क्या है आपका अहंकार? लोकतंत्र की परंपराएं तोड़ रहे हो, कानून पर विश्वास नहीं करते हो, अति पिछड़ा जाति सूचक गाली देते हो, कहते हो कि चोर हैं। कोर्ट कहता है आपको, न्यायालय कहता है माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आपका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि आप माफी मांगने से इनकार करते हैं। आपकी सदस्यता चली जाती है, आपको सजा हो जाती है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, अहंकार नहीं गया। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। अरे भाई, संविधान से तो डरो, कानून से तो डरो, कोर्ट से तो डरो,
कुछ तो समझो। लेकिन नहीं, ऐसी समझदारी, अहंकार इतना बड़ा और समझदारी इतनी छोटी। सत्याग्रह करने चले हैं मित्रों, देश कभी इनको माफ नहीं करने वाला है। और जनता को जाके बताओ, इन लोगों ने अति पिछड़ा को जाति सूचक बोल करके उनके प्रति चोर शब्द का इस्तेमाल करके गाली देने का प्रयास किया, उसके बाद माफी भी नहीं मानी। ऐसे अहंकारी पार्टी और नेताओं को, जनता को प्रजातांत्रिक तरीके से उनके लिए सदा सदा के लिए जवाब देना चाहिए। इस बात को हमको ध्यान में रखना है।